Good morning, student. I am Isha Shukla, your SST teacher. Today we will start your history chapter 2 from traders to rulers. Today we will discuss about the time period of the East India Company, how they come to India as a traders and how they carry out the process of capturing our country. Okay, students, all of you take out your books and I expect you all read with me and point out the difficult words and find out their meanings. It will help you to understand the chapter easily. Now let's start. After Aurangzeb's death in 1707, the Mughal Empire gradually declined. New regional powers emerged, and by the mid-18th century, Mughal rule continued only in the regions around Delhi. तो औरंगजेब की डेथ के बाद सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गई थी मुगल एम्पायर. जो मुगल एम्पायर पूरी साम्राज्य भारत के पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था, तो धीरे धीरे उसका अस्त होना शुरू हो गया था. At this time, the English East India Company emerged as the chief contender for political supremacy in India. उसी समय में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में इंडिया में आई. The East India Company wanted only facilities to carry out trade profitably, but its agents in India showed that it was impossible to have these facilities without a prince friendly to them. बट उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स को लगा कि जब तक यहाँ के जो प्रिंस वगैरह हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस न बनाए जाए तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. He had to be given military protection to remain on the throne, and this could not be given without some control over him. तो इस उनके पास जो मिलिट्री प्रोटेक्शन था उसकी वजह से इस सब कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. How then did they come to be masters of vast empire? In this chapter you will see how this came about. हमारे इतनी बड़ी साम्राज्य के वो मालिक कैसे बन बैठे और वो कैसे पॉसिबल हुआ, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. तो नाउ द ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1600, Queen Elizabeth was granted the East India Company the monopoly to trade with India through a charter. एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर क्या है कि लीगल अथॉरिटी, एक उनको अथॉरिटी दी गई थी कि ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेडिंग कर सकती है. बाकी अदर इंग्लिश कंपनीज ट्रेडिंग कंपनीज सिर्फ इंग्लैंड की अदर ट्रेडिंग कंपनीज वहां पे इसको कम्पीट नहीं कर सकती. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With the help of this charter, the company could venture across the seas looking for new lands from where it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high price. इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई अदर कंपनी इसको कम्पीट कर ही नहीं सकती थी, तो उन्होंने आसपास के लैंड्स पे कब्जा करना स्टार्ट किया. वहां से सस्ती चीप प्राइस में वो लोग खरीदते थे और फिर वहां इंग्लैंड जाके हाई प्राइस में वो लोग सेलिंग करते थे. बट अदर इंग्लिश नेटिव्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड इंडिया एंड द रॉयल चार्टर हैड नो पावर अगेंस्ट देम. बट ये जो चार्टर था, जो लीगल अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो सिर्फ इंग्लैंड की ही अदर कंपनीज में फॉलो होती थी. अदर फॉरेन कंपनीज में उसका कोई इफेक्ट नहीं था. द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी रीच्ड इंडिया इन 1498. Even before Babur came here and much before the East India Company was granted a charter, they had established their settlements in Goa, Daman and Diu. उसी से पोर्टुगीज की कंपनी भी आई और वो 1498 में इंडिया में आई. उन्होंने अपना सेटलमेंट्स गोवा, दमन एंड दीव में किया. The Portuguese were able to control the seas because of their high navigational skills. वो भी सीज पे कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उनके पास हाई नेविगेशनल स्किल्स में समुद्री नॉलेज व सी का नॉलेज उनके पास बहुत था, इसलिए वो भी उनकी उस पर कंट्रोल करने के लिए सक्षम थे. बट दे वर ऑस्टेड फ्रॉम देयर पोजीशंस बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द डच एंड ब्रिटिश. बट उनका भी कंपटीशन डच और ब्रिटिश से था, इसलिए उस पोजीशन को पे पहुंचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था. The Dutch had established a trading center at Surat, Bharuch, Nagapattinam and Chinchura in Bengal, but they were more interested in the spice land. डच ने भी अपना जो सेटलमेंट्स था सूरत, भरूच, नागापट्टनम, चिंसरा और बंगाल में उन्होंने अपने आप को सेटलमेंट वहां पे किया हुआ था. बट उन सभी जो ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी उनका मेन पर्पस क्या होता था, उनको स्पाइस आइसलैंड को ही कंट्रोल करना था. स्पाइस आइसलैंड जहाँ पे मसालों की खेती जहाँ ज्यादा होती है इसको स्पाइस आइसलैंड कहते हैं. आफ्टर एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश they gave up all claims on India to concentrate on the spice islands.
So the French traders arrived on the scene. They established their trade settlements in Pondicherry, Mahi, Chandigarh and Karaikal. फ्रेंच भी उस समय आई, जो उन्होंने अपने सेटलमेंट्स, अपने एस्टेब्लिशमेंट्स कहाँ पे किए? पुडुचेरी, जो अभी पुडुचेरी है, माही, चंडीगढ़ एंड कराईकाल में भी उन्होंने अपना सेटलमेंट्स, अपना मेन ऑफिस बनाया वहां पे. एंड डुप्लेक्सी, द गवर्नर जनरल एट पुडुचेरी, प्लेड अ मेजर रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया. डुप्लेक्सी जो उस समय के वहां के गवर्नर जनरल थे, उनका मेन मुख्य रोल था वहां पे फ्रेंच पावर को वहां पे एक्सपेंशन करने का, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मेन रोल निभाया. ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, there was a stiff competition for control over maritime trade. 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में वहां पे स्टिफ कंपटीशन मींस बहुत टफ कंपटीशन हो रहा था मैरीटाइम ट्रेड. मैरीटाइम ट्रेड क्या होता है? सी ट्रेडिंग, मतलब समुद्री व्यापार में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा. क्यों भाई? क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आके उसी एक ही चीज के लिए, ट्रेडिंग के लिए वहां पे प्रयास करने लगी. द रूलर्स ऑफ दिस कंट्रीज फ्रेम इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट देयर ओवरसीज ट्रेड इंटरेस्ट अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन. इस कंपटीशन की वजह से वहां की जो रूलर्स थी, उन्होंने एक ट्रेडिंग पॉलिसीज निकाली जिसको मर्केंटलिज्म कहा जाता है. द पॉलिसी वाज कॉल्ड मर्केंटलिज्म. उन्होंने अपने वहां ट्रेडिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए एक पॉलिसी को फ्रेम किया, एक पॉलिसी बनाई जिसको मर्केंटलिज्म कहा जाता है. The English allowed goods to be imported into England only in English ships. This enabled the English to regulate the type of goods entering England. तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश से जो भी चीजें इंपोर्ट होती थी उसके लिए सिर्फ इंग्लिश शिप को ही अलाउ था, उन्हीं को परमिशन थी. बाकी किसी भी शिप में इंग्लिश चीजें, इंग्लैंड से कोई भी चीजें इंपोर्ट नहीं की जा सकती थी. Mercantilism led to intense rivalry among countries. It resulted in wars on land and sea. तो ये मर्केंटलिज्म के कारण ये उसका परिणाम जमीनी युद्ध और समुद्री युद्ध दोनों में परिवर्तित हुआ. इन द 17th century, इंग्लैंड, हॉलैंड एंड फ्रांस हैड ट्रेड राइवल्स इन यूरोप. 17th century में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस के बीच में व्यापारी युद्ध शुरू हुआ. राइवल्स में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई. In India, they competed with the Portuguese. The English finally emerged victorious due to their supremacy at sea. और इंडिया में उनको पोर्टुगीज से कंपटीशन करना था और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी को पराजित करके अपनी मोनोपोली वहां पे एस्टेब्लिश की. The reasons for rivalry was that all the companies wanted to buy the same commodities. Rivalries का मेन रीजन क्या था कि सारी कंपनीज जो है एक ही चीज के लिए को खरीदना चाहती थी. द कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. कॉटन और सिल्क प्रोडक्शन जो इंडिया का था उसका बिग मार्केट यूरोप में था. सिमिलरली स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डामम्स एंड सिनेमन टू वेर इन ग्रेट डिमांड. सारे मसालों का भी वहां पे ग्रेट डिमांड थी. तो मसाले एंड सिल्क एंड कॉटन की वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड थी. इसी चीजों के लिए, एक ही चीज के लिए सारी कंपनीज को इंटरेस्ट था. The only way the trading companies could flourish was by reducing competition. तो एक ही रास्ता बचा था उनको कि कंपटीशन को खत्म किया जाए. इसके लिए अपनी कंपनी को आगे लाने के लिए बाकी इस कंपटीशन को खत्म किया जाए, यही उनके लिए रास्ता बचा हुआ था. This also equal markets led to fierce battle between the trading companies. Throughout 17th and 18th centuries, they sank each other's ships, blocked the sea routes and prevented rival ships from moving with supplies. तो ये जो कंपनीज है, ये कैसे कंपटीशन खत्म होता, इसके लिए उन्होंने उस कंपनी के बीच में क्या होने लगा, एक दूसरे की शिप्स को उन्होंने शैंक करना स्टार्ट किया, एक दूसरे की शिप डुबाने लगे. ये ब्लॉक के रूट्स, उन्होंने अपने रास्ते बंद करने स्टार्ट कर दिए और जो गुड्स अपलोड होके जा रही थी शिप्स में उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया. तो ये सारी चीजें वहां पे स्टार्ट हो गई. Trade was now carried on with arms and trading forts were fortified. This effort to carry on trade with arms gave rise to conflict with local rulers. The companies found it very difficult to separate trade from local politics. तो वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ भी उनका संघर्ष शुरू हो गया और अपने ट्रेड को वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख पाए. Let's see how this was finally resolved. तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये चीजें जो है आगे किस
परिणाम क्या होता है तो आगे हम लोग देखते हैं। इंग्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया। The first English factory in Bengal was established and completed in 1651 with the permission from Sultan Shuja. Then the Subeidar of Bengal, बंगाल के सूबेदार ने इंग्लिश फैक्ट्री को सबसे पहले 1651 में परमिशन दी वहां पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। So after English factories sprang up at Kasim Bazar, Patna and other places in the province, ताकि अदर प्रांतों में कासिम बाजार, पटना वगैरह प्रांतों में भी वो धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगे। These English settlements were called factories not because anything was manufactured there, but because the offices of company were called factors. These factories consisted of offices and warehouses and indulged in trade. वहां पे अपनी ऑफिसेस बना लेने के, वेयर हाउसेस में गोदाम भी बना लेके अपने माल को वहां पे स्टोर करने के लिए उनको गोदाम की भी जरूरत थी, तो वो सब भी वहां पे सेटल होने लगे। इंडल्ज इन ट्रेड, दिस एंड अदर लोकेशंस इन इंडिया बिकेम सेंटर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, रॉ, सिल्क, कैलिको एंड इंडिगो। कैलिको मीन्स रंग बिरंगे कपड़े। In 1662, the company got Iceland adopted from King Charles II. So they established factories in Ahmedabad, Agra, Machilipatnam, Decca and Balasore. उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, डेक्का एंड बालासोर में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। बॉम्बे they acquired the जमींदारी of 3 villages, सुल्तानपुरी, कालीकट and गोविंदपुर। The villages soon grew into a city which came to be known as Calcutta. तो ये इन तीनों विलेजेस में उन्होंने अपना वहाँ का सेटलमेंट्स उनको उसको विकसित करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे फिर ये गांव विकसित हुए, आगे चल के उसका नाम कैलकाता हुआ। द कंपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाता। कंपनी ने अपने सेटलमेंट्स को मजबूत किया कैलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। The objective behind this was safety, security and to maintain a monopoly. इसका वहाँ पे ये करने का पर्पस ये था कि वहाँ पे वो अपनी मोनोपोली को सिक्योर करना चाहती थी और अपने आप को सेव करना चाहती थी। Police they used force against the Indian rulers and their foreign rivals. Indian exports were increasing and therefore the Indian rulers encouraged East India Company's factories in India. The company now dreamed of establishing political power in India. तो अब कंपनी का ड्रीम था कि अपनी पॉलिटिकल पावर भी ट्रेडिंग पावर से वो पॉलिटिकल पावर पे भी अपना ध्यान देने लगी थी कि उनका वो सपना बन चुका, धीरे धीरे बन रहा था कि हम यहाँ की राजकीय स्थिति पे भी अपना कंट्रोल कर पाए। दिस वुड एनेबल इट टू कंपेयर द मुगल्स टू अलाउ इट ए फ्री हैंड इन ट्रेड, टू फोर्स द इंडियंस टू सेल इट्स गुड एट चीप रेट्स एंड टू कीप द राइवल यूरोपियन ट्रेडर्स आउट। तो इसलिए वो इंडियन को फोर्स करते थे कि वो कम प्राइस में वो चीजों को बेचें और इस तरह से वो उसका कंपटीशन खत्म करना चाह रहे थे। पॉलिटिकल पावर्स वुड आल्सो मेक इट पॉसिबल टू अप्रोप्रिएट इंडियन रेवेन्यूज एंड टू कॉन्कर द कंट्री विद इट्स ऑन रिसोर्सेज। और पॉलिटिकल पावर्स भी इस तरह से धीरे धीरे वो अपनी पॉलिटिकली भी वो लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे थे, इस वजह से भी ये पॉसिबल होना शुरू हो गया। In 1686, hostilities between the English and the Mughal emperor broke out after the former had sacked Hooghly and declared war on the emperor. 1686 में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई इंग्लिश और मुगल एम्परर के बीच में और फाइनली हुगली में वॉर डिक्लेयर हो गया एम्परर और इंग्लिश के बीच में। The Mughal emperor under Aurangzeb was more than a match for the petty forces of the East India Company. The war ended disastrously for them. They were deprived of their factories in Bengal. वो अपनी बंगाल में अपनी फैक्ट्री से धीरे धीरे वंचित होने लगे, मतलब उनकी फैक्ट्रीज पे उनका ही कब्जा नहीं रह गया। Their factories at Surat, Machilipatnam were seized and their port at Bombay was seized. उनका मछलीपट्टनम सूरत की फैक्ट्रीज भी सीज कर दी गई एंड बॉम्बे का पोर्ट भी जो है उनका सीज हो गया। Having discovered that they were still not strong enough to fight the Mughal power, they expressed their willingness to trade under the protection of the Indian
रूलर्स। तो उनको ये लग गया कि मुगल पावर से फाइट कर पाना अभी इतना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो वो अंडर इंडियन रूलर के अंडर प्रोटेक्शन में ही अपना व्यापार शुरू उन्होंने स्टार्ट किया। तो मुगल अथॉरिटीज readily pardoned the English colony as they recognized that foreign trade carried on by the company benefited Indian artisans and merchants and that the enriched state treasury। तो ये मुगल एम्पायर ये तो जानते थे कि इंडियन आर्टिसंस मतलब भारत के कारीगर से, भारत के व्यापारियों से, और इसी वजह से उनका जो ट्रेजरी, उनका जो खजाना भरता था इंडियन व्यापार से, वो उनको ये चीज पता थी। औरंगजेब permitted them to resume trade on payment of ₹150,000 as a compensation। 150,000 उनको कंपनसेशन के रूप में वो उन्होंने परमिशन दिया, उनके व्यापार के लिए कंपनसेशन उनके पे लगाया। In 1717, the company secured from Emperor Farrukh Farman confirming the privileges granted in 1691 and extending them to Gujarat and the Deccan। तो 1717 में कंपनी एम्परर फर्रुख ने फरमान जो जारी किया, उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने 1691 में अपने व्यापार को गुजरात और डेक्कन तक बढ़ाया। This फरमान granted the company the freedom to export and import their goods in Bengal without paying duty or taxes। इस फरमान में क्या था कि बंगाल में अपने गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता था विदाउट पेइंग टैक्सेस, बिना टैक्स पे किए वो अपने व्यापार चीजों को वहां से ला सकते थे और बेच सकते थे। This also gave the right to issue passes of dastkhats for movement of such goods, but during the first half of the 18th century, Bengal was ruled by strong nawabs such as Murshid Qoli Khan and अलीवर्दी खान। तो धीरे धीरे ये सब चीजें वो अपने कंट्रोल में लेने लगे थे, बट इसी समय 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग नवाब उस समय वहां पे आए, मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान। तो उन्होंने क्या किया, दे एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इंग्लिश ट्रेडर्स एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम मिसयूजिंग देयर प्रिविलेजेस। तो उन्होंने उस पर कंट्रोल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों पे कंट्रोल किया और उनको अपने उस पावर को मिसयूज करने से रोका। Neither did they allow them to strengthen fortification at Calcutta or to rule the city independently. Then the East India Company remained a mere zamindar of the Nawab। फिर उन्होंने इसलिए कलकत्ता में पूरा कब्जा करने से उनकी मजबूती को, उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन फोर्टिफिकेशन मतलब वो जो मजबूत बन रहे थे उस एरिया में, उस चीज पे उन्होंने कंट्रोल किया। Okay students, today's class is over and we will continue this chapter in the next